हाय फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम समझेंगे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। वी नो रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटलिक कंडक्टर आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेरियल ऑफ कंडक्टर, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। Now, if we come to the expression for resistance in terms of material parameters, तो material parameters की टर्म में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ml अपॉन n e स्क्वायर टो a। अपनी प्रीवियस क्लासेस में शायद हमने कहीं निकाला है इस एक्सप्रेशन को, ml अपॉन n e स्क्वायर टो a। अब यहाँ m n e n टो आर कॉल्ड मेटेरियल पैरामीटर्स, और इन मेटेरियल पैरामीटर्स में से m mass of electron, e electronic charge, both are constants. Variable n yani number of free electrons per unit volume of conductor, and tau relaxation time. Actually it is mean relaxation time, that is average time taken by free electrons between two consecutive collisions. तो टेम्परेचर के साथ n और tau में चेंज आएगा, because of that resistance of conductor will change. अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करें तो ऑन कंपेयरिंग दीज टू एक्सप्रेशंस वी फाइंड दैट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ मटेरियल पैरामीटर्स इज m अपॉन n e स्क्वायर टॉ, एंड विद चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर विल चेंज ड्यू टू चेंज इन n and tau. That is why resistance of conductor will also change due to change in temperature. Now we will understand how n and t will change with change in temperature. सबसे पहले अगर हम बात करें n की, तो ये n means number of free electrons per unit volume. Free electrons आए कहाँ से? जो मेटलिक एटम्स हैं, उन एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। अब कैसे? अगर इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल को कहीं से एनर्जी मिलेगी तो एट द कॉस्ट ऑफ दैट एनर्जी they will become free from the attraction of nucleus. अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो with increase in temperature the energy gained by electrons in valence shell increase करेगी. अगर energy gained by electrons will increase, then it means they will become free from the attraction of nucleus. तो इसका मतलब with increase in temperature number density of free electrons will increase, because more and more electrons will become free from the attraction of nucleus due to the heat energy gained by them owing to increasing temperature. अब बात करते हैं tau की. Tau means mean relaxation time. अब average time taken between two consecutive collisions. Time मतलब distance upon speed. अब यहाँ कौन सा distance? Distance between two consecutive collisions. And average distance between two consecutive collisions is called mean free path. So mean free path, which is represented by lambda, is the distance, and upon speed, speed means root mean square speed of free electrons. Since free electrons in a conductor behaves as molecules of a gas, so the collection of all these free electrons is also called electron gas, and that is why the average speed of free electrons will be obtained in the same manner as the speed of gas molecules. अब speed of gas molecules के लिए हमारे पास क्या है? Root mean square speed of gas molecules VRMS directly proportional to under root of its absolute temperature. तो in the same way यहाँ अगर हम root mean square speed of free electrons लें तो वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज करेगी। अब वीआरएमएस तो इंक्रीज करेगी, लेकिन अगर लैम्डा की बात करें कि लैम्डा का क्या होगा, तो अगर हम डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी। तो इसी तरह से अगर हम टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज करेंगे तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मेटलिक कंडक्टर्स में जो
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दे आर नॉट फ्री टू लीव देयर पोजीशंस, तो फिर उनकी कैसी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? क्योंकि इन मेटालिक कंडक्टर्स, दैट इज इन सॉलिड्स, atoms or molecules, or you may say constituent particles, are capable to oscillate about their mean positions, so there will be increase in kinetic energy of oscillations of the particles. अगर कंडक्टर के constituent particles अपनी अपनी पोजीशन पे इंक्रीज एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करने लगेंगे, तो इट मींस नाउ दे विल रिक्वायर मोर स्पेस फॉर देमसेल्व्स। अगर उन्हें ज्यादा जगह चाहिए होगी, तो इसका मतलब किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन इफेक्टिवली रिड्यूस हो जाएगा। और अगर सेपरेशन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स रिड्यूस हो जाएगा, तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी पार्टिकल्स के बीच में चलने के लिए जगह कम मिलेगी। तो इट मींस द मीन फ्री पाथ अवेलेबल फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन फ्री पाथ विल डिक्रीज व्हाइल वीआरएमएस विल इंक्रीज। अब लैम्डा डिक्रीज, वीआरएमएस इंक्रीज, मतलब टॉ डिक्रीजेस। अब यहां अगर रेजिस्टिविटी के एक्सप्रेशन में देखें, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से टॉ डिक्रीज करता है, एन इंक्रीज करता है। टॉ का डिक्रीज मतलब रो का इंक्रीज, बट एन का इंक्रीज मतलब रो का डिक्रीज। तो अब कैसे पता चले कि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर मेटालिक कंडक्टर्स? तो उसके लिए याद रखना है कि यहां डिक्रीज इन टॉ डोमिनेट्स इंक्रीज इन एन। अब चूंकि डिक्रीज इन टॉ डोमिनेट करती है इंक्रीज इन एन को, तो इसका मतलब टॉ का इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ एन। और टॉ का इफेक्ट ज्यादा है, तो टॉ तो डिक्रीज हो रहा था भाई, अगर टॉ डिक्रीज हो रहा था तो इसका मतलब रो इंक्रीज होगा। तो thus for metallic conductors resistivity of material increases with increase in temperature, और अगर resistivity increase करेगी तो it means resistance will also increase। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा विद टेम्परेचर, तो मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज आर नॉट, व्हेयर रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस इज RT। तो देन RT इज given by RT is equal to R naught 1 plus alpha T. Here T is T minus 0, change in temperature. It means here T is change in temperature and alpha is a constant for the material of conductor and is called temperature coefficient of resistance. And this expression will give you the resistance of a conductor at any temperature T when you know the resistance at 0 degree Celsius, temperature coefficient of resistance for the material of that conductor and change in temperature of the conductor. Now अगर हम इस अल्फा को देखें, तो अल्फा को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे कि अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R नोट अपॉन R नोट इंटू delta T. Delta T means change in temperature, that is T, and from this we can see RT minus R naught will be having the unit of resistance upon again the unit of resistance, that is of R naught multiplied by temperature. So it means its SI unit should be per Kelvin and CGS per degree Celsius. क्यों? क्योंकि unit of resistance will cancel the unit of resistance and effectively you will get only the unit of temperature in denominator. So it will be about the temperature coefficient of resistance and variation of resistivity and hence resistance of metallic conductors with temperature. If we want to plot the variation of resistivity with temperature in case of copper, then for up to almost 50 Kelvin there will be no much variation, but after 50 Kelvin the resistivity increases rapidly with increase in temperature. So it will be the variation of resistivity with temperature for copper. Now after metallic conductors, if we come to alloys, then an alloy is a mixture of two or more metals. अगर two or more metals का mixture है, तो whatever is true for metals will be true for alloys also. But generally for our own use हम ऐसे alloys बनाते हैं जिनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो।
ताकि जब उनके अंदर से करंट फ्लो करने की वजह से हीट डेवलप हो तो उनके रेजिस्टेंस में कोई एप्रिशिएबल चेंज ना आए। और ऐसी कुछ अलॉयज हमारे पास होती हैं, नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीम, यूरेका, एंड इन अलॉयज को हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस कॉइल्स। रेजिस्टेंस कॉइल्स मींस कॉइल्स ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस। और अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, अगर इनकी रेजिस्टिविटी का वेरिएशन विद टेम्परेचर देखें तो देयर विल बी ओनली अ लिटिल वेरिएशन in resistivity with temperature. So it means their resistivity and hence resistance increases with temperature but by a very small amount only. तो ना के बराबर इंक्रीज आएगी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस में विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर alloys. जब हम बात करेंगे सुपर कंडक्टर्स की तो सुपर कंडक्टर्स क्या है? एक्चुअली इट इज अ फिनोमिना ऑब्जर्व्ड बाय कैमरलिन ओन्स। कैमरलिन ओन्स के ओन्स एक साइंटिस्ट रहा जिसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि अगर किसी कंडक्टर को कूल करें तो इनिशियली उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है विद डिक्रीज इन टेम्परेचर जस्ट लाइक ऑर्डिनरी कंडक्टर्स, बट ऑन कूलिंग बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर इट्स resistivity suddenly reduces to 0. So it means if we come to the variation of resistivity with temperature for superconductors, then beyond a certain temperature, that temperature below which a material behaves as superconductor and above which as an ordinary conductor is called transition temperature or critical temperature for that material. Or this temperature will be different for डिफरेंट मटेरियल्स। तो अलग अलग सुपर कंडक्टर के लिए ये क्रिटिकल या ट्रांजिशन टेम्परेचर अलग अलग होगा। और ये क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जिसपे आके एक ऑर्डिनरी कंडक्टर की जो शो कर सकता है सुपर कंडक्टिविटी, उसकी रेजिस्टिविटी एकदम से 0 हो जाएगी। तो इट मींस ऑन कूलिंग बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर सुपर कंडक्टिंग मटेरियल विल चेंज इनटू अ सुपर कंडक्टर। नाउ why is it called a superconductor? Because its resistivity is 0, it means its conductivity is infinite. If we will allow any current to pass through it, that will remain flowing in it as such for an indefinite time. So it means it was about superconductors. Now semiconductors, if we come to semiconductors, तो semiconductors क्या है? ऐसे materials जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से ज्यादा है बट गुड कंडक्टर से कम है। और जनरली ये कौन से सब्सटेंसेस हैं? दीज आर दोज सब्सटेंसेस इन हुज एटम्स आउटरमोस्ट शेल हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब ये सेमी स्टेबल है। और जब ये एटम्स ऑफ सच मटेरियल्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो वो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक एटम के 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल वाले 4 पड़ोसी एटम्स के आउटरमोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग करते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो इट मींस अब ये सब कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं तो इनके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे नहीं होगा। तो इसका मतलब एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर दे विल बी ए परफेक्ट इंसुलेटर। लेकिन अगर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल गेन हीट एनर्जी और उस हीट एनर्जी की कॉस्ट पे वो बॉन्ड्स को तोड़ के बाहर निकल आएंगे, यानी दे विल बिकम फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। और अगर वो एक कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के बाहर आएंगे तो जहां कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा वहां एक खाली जगह रह जाएगी इलेक्ट्रॉन की और वो सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाएगी होल। तो इसका मतलब in semiconductors we get charge carriers, electrons as well as holes because of breaking of covalent bonds, because after gaining energy electrons break the covalent bond and become free from the attraction of nucleus. अब ये इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही काम करते हैं चार्ज कैरियर्स का। अगर हम सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज नंबर ऑफ होल्स दोनों बढ़ेगा, क्योंकि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स
कि एनर्जी गेंड इंक्रीज करेगी, और अगर एनर्जी गेंड बाय इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगी तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा टूटेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा टूटेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स प्रोड्यूस होंगे, और चार्ज कैरियर्स का नंबर अगर बढ़ेगा तो कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर बढ़ेगी, और अगर कंडक्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो इसका मतलब इन सेमीकंडक्टर्स विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर चार्ज कैरियर्स increases, and as the number of charge carriers increases, their resistivity and hence resistance decreases. In the same way, when we come to electrolytes, then in electrolytes charge carriers are positive and negative ions. अगर positive और negative ions charge carriers हैं तो सबसे पहले ions हैं क्या? Ions are the atoms after losing or gaining electrons. अब ये जो atoms हैं इनकी kinetic energy डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इंक्रीज करेगी, और ये एटम्स काम करेंगे चार्ज कैरियर्स का आफ्टर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो बन जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो अगर ये जल्दी से मूव करने लगेंगे यानी देयर मोबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो इसका मतलब वो कैपेबल होंगे टू ट्रांसफर चार्ज क्विकली। अगर चार्ज क्विकली ट्रांसफर हो गया तो करंट इंक्रीज कर गई, और अगर करंट इंक्रीज कर गई तो वी विल से दैट रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया। तो इसका मतलब इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस causing an increase in current, and since in current in electrolyte increases with increase in temperature, we will say that its resistivity or resistance decreases with increase in temperature. So it was all about the variation of resistivity and hence resistance with temperature for different materials.